Welcome back. Welcome to our late night edition where we bring you all the big stories of the day. Even as the NDA moves at lightning speed to form the next government, the India bloc is keeping its cards close to its chest. Despite a commendable performance which saw them win 234 seats, they are well short of the majority mark. It's most likely that they're going to be sitting in opposition. And in fact, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Tejaswi Yadav, Akhilesh Yadav, Abhishek Banerjee, Sanjay Singh, all of them and several other leaders, including Sharad Pawar, they met today as part of the India Bloc Alliance meeting. And in his opening remarks, Congress chief Kharge reiterated that the mandate of public was against Prime Minister Modi. He also paved way for the re-entry of Nitish and entry of Naidu in the India Alliance, saying all parties who share similar goal of saving the constitution are welcome. The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time. This is our decision and we all together agreed on these points. कि आज बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। खरगे साहब के घर में बैठक हुई। सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खरगे जी, शरद पवार साहब, स्टालिन साहब, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी सभी थे जी। और हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही जी। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। When the BJP got defeated at Ayodhya and when Narendra Modi in his own constituency 4 lakh people who voted in 2019 didn't vote now. Definitely the mandate is clearly for the India bloc to rule the country. If we formed the alliance in other states also, we could have got the number now. But now we have to wait and see. We discussed the current situation. Mr. Kharge ji read out the statement adopted in the meeting. That is the position. And day after the Mayuti was humbled by the Mahavikas Aghadi in Maharashtra, heads have started to roll. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis offered to resign from his opposition, taking blame for his party and alliance's overwhelming performance. Speaking to the media, the senior BJP leader has said he has requested the leadership to relieve him from the duties so that he could work for the party. However, his offer has been rejected by Chief Minister Eknath Shinde, who says everyone should collectively take responsibility for the defeat. Maharashtra is one of the many states where the BJP lost out to the opposition. Out of the 48 seats, the Mayuti won only 17 seats, with BJP emerging victorious on only 9 of them. हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय। आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे, अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे
त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल. अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे. या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन. जो भी मतलब हमारी जगह कम आई है महाराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी का स्वीकार मैं करता हूँ. यहाँ तक ही ये बात सीमित है, उसके आगे कोई बात नहीं. देवेंद्र जी सरकार में भी हमारे साथ में रहेंगे और संगठन में भी काम करेंगे. हमारे पास 200 से 200 के लगभग सीट हमारे पास में है, विधायक हमारे पास में है. सरकार का यहाँ सवाल क्या आया? सरकार का तो कोई सवाल ही नहीं आता है. खाली देवेंद्र ने इसलिए कहा था कि भाई चलो जगह कम आई है, सीटें कम आई है, मैं नेतृत्व कर रहा था बीजेपी का, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी मेरी है. ये बात यहाँ तक ही सीमित है, उनके रिजाइन का कोई सवाल नहीं है. नहीं, वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, उसके बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं है. भाजपा को जनता ने नकारा है, ये स्पष्ट हुआ है. सिंगल डिजिट पर भारतीय जनता पक्ष का नंबर यहाँ पे आंकड़ा आया है. इससे पता चलता है कि केंद्र का हो या राज्य का हो, नेतृत्व सबसे फेल हो चुका है. अब कुछ संवरने की कोशिश वो करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो निर्णय है, उनके हाईकमान अगर इतना अधपतन होने के बाद भी, पक्ष का वातावत होने के बाद भी जिम्मेदारी वो लेते हैं और राजीनामा देने की बात करते हैं, तो उसके हाईकमान उस बारे में सोचेगी. खुद वो तो कह रहे हैं कि उनको कुर्सी से हटना है, अब वो सेवा में लगना चाहेंगे. सेवा क्या करेंगे, जनता ने उनको रिटायर कर दिया है. फडणवीस के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग योगी जी को हटाना चाहते हैं कि देखिए महाराष्ट्र में सीट कम हो गई, देवेंद्र ने इस्तीफा दिया तो आपको देना पड़ेगा. ये एक प्लॉटिंग चल रही है. प्लॉटिंग चल रही है.